Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing good and studying well. Alright guys, so today we are into the third video lesson on the SHM and the topic that we are going to discuss today is the phase. It's the most important part, most important component of the SHM and it's slightly complicated, but if you understand this properly, this complication would go off and it is going to be very easy for you. JEE loves asking questions on this topic, on this concept of the SHM. तो आप इसको बड़े आराम से धीरे धीरे समझो. आज मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ाऊंगा, है ना? तो those who has done it, they can do the fast forward. वरना मेरा speed, I think that should be synchronized with your speed और आप अच्छे से समझ पाओगे. ठीक है बच्चों? तो चलो स्टार्ट करते हैं. And I believe you must have seen the previous two videos lesson on the SHM. अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लो. बहुत बातें आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी, आपके मन में एक बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी. तो लिंक आपको मिल जाएंगे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको उस प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे बच्चों. ऑल गुड. सो नाउ टुडे एज आई हैव टोल्ड यू आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेज. वेल व्हेन वी टॉक अबाउट द लीनियर एसएचएम, द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल और हम उसी को मान के चलते हैं हमारा लीनियर एसएचएम जो कि हमारा सिलेबस में है. सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक हमारा ब्लॉक ऐसा है and this is in the main position, ये हमारा रेस्ट के पोजीशन में है. so this is the main position, this is the main position, this is in the rest. तो हमारा ये मेन पोजीशन, ठीक है, ब्लॉक ऐसे टच कर रहा है ऑब्वियसली, है ना, फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके और इसका मास आप m रख लो, ठीक है. we give it a force, एक इंपल्स देके इसको हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, it will go forward, come back to the main position and carry on backward direction. Same thing will keep on rotating, keep on repeating, sorry, you know. So that is going to be called as a simple harmonic motion because it is oscillating about the main position and it is not undamped, you know, undamped nahi hai. All good. So if I want to understand this in sort of a linear, अगर हम इसको लाइन में समझने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना. Let's suppose this is the main position and these are the two extremes. इसको मान लो positive amplitude, extreme will be what? Its amplitude and it's going to be the negative amplitude, है ना. Now let us understand its motion. होगा क्या और ये कैसे काम करेगा, ठीक है. It would start from here. Displacement is always taken from the mean position. Displacement जो है हमेशा मेन पोजीशन से देखा जाता है. इसमें कोई भी शक या संभावना नहीं है कि वो हमेशा मेन पोजीशन से ही रहेगा. इस बात को आप गांठ बांध लो. तो let's say it's starting from here. मान लेते हैं कि it's starting from the main position. Taking this as a reference, तो क्या होगा? It will first go to the extreme position, इस तरफ जाएगा पहले. Alright बच्चों, it will stop momentary rest और ये वापस इस तरफ आएगा, right? And it is going to cross the main position one more time, but it's not going to stop. The reason being it has gained a certain amount of kinetic energy, so that will not let it stop. In fact, it's going to go to the negative extreme, है ना? ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा. Will come to a momentary rest over here और वापस से it will go back to the main position. Well, this is the whole cycle of the motion of this spring block system. ये पहले गया एक्सट्रीम पे गया, रुका, वापस आया, नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, रुका, वापस आया, मेन पे रुका. हमें लाइक रुकेगा नहीं, फिर से कंप्लीट करता रहेगा. तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कंप्लीट साइकिल. एक पूरा एक कंप्लीट साइकिल को यहां पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स से द टाइम पीरियड इज t of this motion. The time period is t. तो you can see that this is divided in four parts: 1, 2, 3 and the 4. If I just drop a dotted line to make you understand कि भैया मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. So the time taken to go from here mean to the extreme, it's going to be how much? T upon 4, you know, 1/4 of time period लेगा, right? T upon 4. And coming back should also take T upon 4 to the main position. From mean to extreme, it is going to take t upon 4 and likewise it's going to take t upon 4 time over here from going to the left extreme to the main position. So overall you can see that one complete cycle is done in time period t, which is now divided in 4 segments. मैंने 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया. Now as I've told you, displacement is always taken from the main position. Displacement of the particle of the block जो भी है of the body, displacement is taken from the main position always, you know, taken from main position always, okay. But time पे कुछ constraint नहीं है. All good. I can start
मैं अपने क्लॉक को व्हेन द बॉडी इज एट मीन पोजीशन वहां पे स्टार्ट कर दूं, या फिर अगर बॉडी ऑलरेडी हैज मेड सर्टेन मूवमेंट, बॉडी यहां पे है, इसको मान लेते हैं कि भैया मेरा टाइम इधर से स्टार्ट हो रहा है। कुड बी राइट, हो सकता है कि टाइम यहां पे स्टार्ट हो, टाइम यहां पे स्टार्ट हो, मेरी मर्जी में किधर भी टाइम स्टार्ट कर सकता हूं। सो टाइम कुड बी टेकन एट एनी पोजीशन ऑफ द एसएचएम। टाइम आप किसी भी पोजीशन पे इनिशियल टाइम मान सकते हो। अब देखो पंगा क्या होगा, व्हाट इज गोना बी द डिफिकल्टी इफ आई डू दैट, व्हाट्स गोना बी द डिफरेंस, यू नो। आप अगर इस मीन पोजीशन पे इनिशियल टाइम नहीं मानते हो एंड यू टेक द इनिशियल पोजीशन एट समवेयर हियर, कहीं और ले लेते हो, तो कुछ इनिशियल आप ऐसे समझो, इनिशियल पाथ इसने कवर्ड कर रखा है और उस पाथ को बोलते हैं, यहां पे अगर एक वेग लैंग्वेज में बोल दूं मैं, कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर रखा है, तो उसको हम फेज बोलेंगे। रीजन क्या है आपको बताता हूं, यू नो। टाइम कुड बी, इसको पहले लिख लो, टाइम कैन बी स्टार्टेड और स्टार्टिंग टाइम कैन बी टेकन फ्रॉम एनी, टाइम कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी पोजीशन, फ्रॉम एनी पोजीशन ऑफ एसएचएम, यू नो, एनी पोजीशन ऑफ एसएचएम, किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मान लो कि कहीं इधर वो स्टार्ट किया, लेट्स सपोज कि किसी भी पॉइंट पे, एग्जांपल देके मैं समझा दूंगा। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इज कि वी नो दैट x इज इक्वल्स टू व्हाट, a साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपने देखा प्रीवियस क्लासेस में कि एक फाई नॉट में रखता हूं और ये रखा जाता है बेसिकली, और इसको बोलते हैं फेज, इनिशियल फेज कांस्टेंट। अब देखो यहां पे तो मैंने बोला कि भैया डिस्टेंस मान लो कुछ मूव करा है, बट वी कैन कीप दैट इन एंगल, और उस एंगुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फेज। तो जो फेज जो है उस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं फेज, और क्योंकि वो साइन का एक एंगल है तो फेज को हम लोग एंगल के फॉर्म में लिखते हैं, थीटा 30 डिग्री π/4, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी उसमें दे रखा है हम उसके फॉर्मेट में लिखते हैं, और उस एंगुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं बच्चों फेज। इनिशियल फेज डिफरेंस और इनिशियल फेज कांस्टेंट आप उसको बोल सकते हो। उसका मतलब यही हो गया कि द बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर इसमें फाई नॉट का कुछ वैल्यू है, इसका मतलब है कि बॉडी मीन पोजीशन से स्टार्टिंग हमने नहीं लिया है। वी हैव टेकन द इनिशियल टाइम एट समवेयर अदर प्लेस बट नॉट द मीन पोजीशन। और ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी जब मैं आपको फेजर डायग्राम सिखाऊंगा। इस एसएचएम को मैं सर्कुलर मोशन से रिलेट करके दिखाऊंगा, तब आपको बात और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बट इतना आप अभी समझ लो कि दिस रिप्रेजेंट्स, इफ वी हैव एनी वैल्यू ऑफ फाई नॉट ओवर हियर, इट क्लियरली मींस कि बॉडी का जो इनिशियल टाइम जो 0 हमने माना है, वेल दैट वाजंट व्हेन द बॉडी वाज एट मीन पोजीशन, दैट इज टेकन समवेयर अदर देन द मीन पोजीशन। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। लेट्स से बच्चों की हमारा एक एसएचएम बॉडी कर रहा है ना, बॉडी इज डूइंग एसएचएम, ये आपका मेन पोजीशन है, और लेट्स से दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। नाउ लेट अस से दैट कि जो बॉडी हमारा है, बॉडी हमारा कहीं भी एक पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, ठीक है, और इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मेन पोजीशन इज -√3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, ऐसा हमने मान लिया। अब इट कुड बी पॉसिबल दैट द बॉडी कुड बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर बॉडी राइट की तरफ भी जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं बड़ा ही सिंपल सिचुएशंस ले रहा हूं कि बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। बॉडी लेफ्ट से मतलब कहीं ना कहीं इधर है ना, इस पोर्शन में, इट इज इन दिस पोर्शन। अगर मैं इसका नाम दे दूं बच्चों, लेट्स सपोज दिस इज ए, बी, और भी ऑब्वियसली बी ही है, सी, तो कहीं ना कहीं बॉडी जो है हमारा सी टू ए के बीच में है, सी टू ए के बीच में बॉडी हमारा मूवमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन और राइटवर्ड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी हमारा अप्रोचिंग द मेन पोजीशन है। सिंपल सी बात है ना। अब मैं आपको बोल दूं सिंपल सा क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ द अबव एसएचएम, of the above SHM। अगर it is representing an SHM motion, अगर मैं बोल दूं कि इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि सर ये मेन पोजीशन पे तो स्टार्ट नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर मैं बोल दूं एट टाइम t = 0 पे बॉडी इज हियर, टाइम t = 0 पे जो हमारा ब्लॉक है वो कहीं इधर है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसका मतलब है बच्चों कि एक फेज कांस्टेंट तो होगा, एक इनिशियल फेज कांस्टेंट होगा। If I could find that initial phase constant, we could be able to write the equation of the SHM। अगर हमको ये मिल जाता है, हम easily equation of SHM लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखो
इसके बहुत तरीके हैं, आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करके सिखाता हूं, आप मेरे साथ बने रहना। अगर आपको समझ में नहीं आए दोबारा रिपीट करके देखना। आई नो यू मस्ट हैव, और मे बी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप यहां से सीखोगे फ्रॉम द जीरो। अगर आपने देख रखा है, पढ़ रखा है, समझ रखा है और आपने किसी और मेथड से किया है, आई कीप दैट एट होल्ड, उसको एक साइड रखो। अभी आप फिलहाल इस बेसिक को समझो, फिर हम उस पर आएंगे। मैं आपको आप जो भी मेथड आप कर रखे हो, मैं आपको सारे मेथड सिखाऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेज, आप इसको अच्छे से समझो बच्चों, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो है कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस फेज को हम कैसे लिखें। डिस्टेंस तो मेरे को पता है √3/2a, बट उसको फेज में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ कुड आई राइट दैट इन टर्म्स ऑफ फेज व्हिच इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। पहली बात तो ये समझ लो, अच्छी बात है। तो इसका इक्वेशन मान लो आप, x = a sin of ओमेगा t + phi नॉट मान लो, ठीक है। एट टाइम t = 0 बॉडी का जो आप पोजीशन देख रहे हो इतना दे रखा है, राइट। सो कैन आई जस्ट से दैट एट टाइम t = 0, भैया जो बॉडी है आपका x का जो वैल्यू है कितना है, -√3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मैंने इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। वेल दैट्स गोना गिव मी व्हाट, a टाइम्स ऑफ sin t is what 0, so that's going to be 0 plus phi naught बच्चों, है ना। so a should be cancelled and we would be left with sin of phi naught is it could be -3/2. So I know that this is going to give me some value, एक कुछ तो एंगल मेरे को मिल रहा होगा, ठीक है। अच्छी बात है। बिफोर आई जंप इनटू द ट्रिगो पार्ट ऑफ इट, मैं कुछ और आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, थोड़ा मेरे साथ आप बने रहो, है ना। आई वांट टू शो यू समथिंग मोर ओवर हियर, देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो भैया क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, ये साइन ग्राफ है, तो पहले तो साइन ग्राफ बना लो ऐसे, है ना। इसको हम साइन बना लेते हैं, तो ए लो आपका साइन हो गया ना। तो हमारा इस पार्ट में 2π तक ही हमारा काम बन जाएगा, है ना, बिकॉज साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π। नाउ लेट अस से दैट इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों, दैट इज ए पॉजिटिव, और ये हमारा हो गया नेगेटिव एम्पलीट्यूड, टी ना, नेगेटिव ए हो गया, ठीक है। बॉडी कहां पे है, बॉडी इज एट -√3/2, मींस कहीं ना कहीं मान के चलेंगे ऑब्वियसली कि बॉडी कहीं या तो इट कुड बी हियर, या तो यहां पे हो, और एल्स इट कुड बी हियर आल्सो। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द बॉडीज पोजीशन, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव तो इस तरफ है, तो नेगेटिव है √3/2, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगा। इट मींस दिस इज हाउ मच, -√3/2। अच्छी बात है, ठीक है, ओके। नाउ फॉर दैट आई एम गोना गेट सर्टेन एंगल, ये दो एंगल्स मेरे को मिल रहा होगा। आई एम गोना गेट 2 एंगल्स फॉर दिस। पहला एंगल ये होगा, दूसरा इट कुड बी हियर। इतनी बात तो क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है ना, अच्छी बात है। नाउ लेट अस सी दिस इज गोना बी हाउ मच, पाई, और ये भाई साहब कितना होगा आपका 60 डिग्री, π/3 होगा, है ना। तो दिस इज π/3, आप ध्यान से देखना, ये π/3 होगा, तो इवन दिस इज आल्सो π/3, दिस इज π/3, इवन दिस इज गोना बी π/3, 60 डिग्री पे √3/2 होता है ना। तो दिस इज गोना बी पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3, दैट मींस इट इज गोना बी 4π/3। तो इस एंगल का जो वैल्यू है बच्चों 4π/3, और इसको आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत आसान तरीका है, इसको 2π मान लो, है ही ऑब्वियसली बात है, 2π माइनस π/3 कर दो। So 2π minus π/3 that should be how much, 5π/3। तो बच्चों ये जो एंगल हो गया that is 5π/3। It means I'm gonna get two values for phi naught. So phi naught could be 4π/3 or it could be 5π/3। Now it's upon, अब हमको ध्यान से देखना है कि इन दोनों में किस वैल्यू के लिए ये SHM इस जो क्वेश्चन के जो दे रखा है उसके लिए वो सही होगा। So we have to figure out which angle is going to be justifying this SHM motion। वो हमको देखने का तरीका समझ लेते हैं पहले। अब दो तरीके हैं, पहले तो आप इसको मैथमेटिकली समझो, फिर शॉर्टकट से भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, वेलोसिटी मेरे को पता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड्स राइट, पॉजिटिव साइड में वेलोसिटी है, और इफ आई कुड डिफरेंशिएट दिस, अगर बच्चों में इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा ना जी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस phi naught, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट एट टाइम t is equals to 0 वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एट t is equals to 0 the velocity should be equals to how much, a omega cos of phi naught, because t is 0। मेरे को पता है दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव, राइट वर्ड है, ये पॉजिटिव है, a इज पॉजिटिव वैल्यू, ओमेगा पॉजिटिव वैल्यू होता है, और ये इंटायर थिंग इज पॉजिटिव, व्हिच मींस cos has to be positive, cos बच्चों आपको पॉजिटिव होगा। अब देख लो, अब ध्यान से देख लो,
cos इस एंगल के लिए पॉजिटिव है या फिर इस एंगल के लिए पॉजिटिव है. You need to understand one thing. टिक 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 टिक, 0 to 90 degree. This is 0. Pi by 2, first quadrant, second quadrant, and you can say this is the third quadrant, and this is going to be the fourth quadrant. And you all know that cos is going to be positive in the fourth quadrant. में cos positive होता है. Fourth quadrant में cos positive होता है, which clearly means out of these two angle, well, that's going to be the correct angle. That should be the correct angle. Let me repeat one more time. This is positive. I believe camera में आ रहा है ना? Let me just check. Exactly. Good. So for this value, cos is going to be positive. This has to be positive because the velocity right side में तो positive है, और cos इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए अपन को चेक करना है किसके लिए पॉजिटिव है. तो this angle is falling in the third quadrant, और third quadrant में cos negative होता है. In the fourth quadrant, the cos is going to be positive, which means I must choose this angle बच्चों. 5 pi upon 3. तो मेरे को तो फेज मिल गया. तो साइन मेरे को दिखाता है कि भैया उसका फेज कितना है, और वेलोसिटी मेरे को दिखाएगा कि फेज कौन सा फेज आपको चूज करना है, बिकॉज दैट वुड शो यू द पॉजिटिव और द नेगेटिव. तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट इज वी कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम. बच्चों मैं यहां पे लिख दो, तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा दैट शुड बी a sin ओमेगा टी प्लस 5 पाई अपॉन 3. बल्ले बल्ले, है ना. तो भैया ये आपका हो गया आंसर, और ये आपका इक्वेशन ऑफ दिस एसएचएम हो गया है. यहां पर तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग को भी ये समझ में आ रहा होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना. अच्छा एक बात और समझ, शॉर्टकट देखो. अगर मैं इफ आई कुड रीच टू दिस ग्राफ, अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर ले तो मेरी बात समझना है ना. इसको देखो, दिस इज द नेगेटिव एक्सट्रीम, दिस इज द मेन पोजीशंस. ये सारे मेन पोजीशंस है, राइट. पॉजिटिव एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम है. इफ यू लुक एट दिस सिचुएशन, ए बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है. एंड बच्चों इफ यू लुक एट दिस वन, अगर आप इसको देखते हो, if you look at the motion of the object at this place, this point, it is going towards extreme, in negative extreme की तरफ जा रहा है. On the other hand, if you look at this position, अगर इस पोजीशन पे देखते हो आप, तो बॉडी कहां जा रहा है बच्चों? आप टाइम को बढ़ाओगे तो बॉडी आपका मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है. Obviously, I can clearly say, तो नेक्स्ट टाइम से मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I can easily make out कि among these two angles कौन सा एंगल हमारे लिए सही है. तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, जस्टिफाई करेगा, वही एंगल होगा, विच इज क्वाइट क्लियरली विजिबल फ्रॉम हियर कि वो हो जाएगा. आप इसको समझ लो, अभी ये फंडामेंटल है. आगे चलकर हम लोग फेजर डायग्राम सीखेंगे, तो इसको ऐसे ऐसे 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स में इसको हम लोग करने के लायक बन जाएंगे. बट ये आपको समझना बहुत 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 जरूरी है. फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए और समझना होगा आपको. इफ यू वांट टू क्रैक गुड रैंक, आपको समझना होगा. एक तो हमने आपको समझा दिया. तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द बॉडी व्हेन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन, वो जाएगा पहले एक्सट्रीम की तरफ, वापस से मीन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम नेगेटिव में जाएगा, बैक टू द मीन, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग. एंड दिस वन कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई इज गोना बी द टाइम पीरियड. इतनी बात तो हमको क्लियर हो गया ना, अगर वो साइन का है तो. चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम एक और क्वेश्चन इस तरह से आपको दिखाते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको राइट वर्ड किया है तो इजीली बन गया. हम इसको लेफ्ट वर्ड और या फिर इधर भी करके आपको एक और एग्जांपल बच्चों मैं दिखाता हूं. ठीक है, आप इसको अच्छे से समझते जाओ मजे में. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग. अगर समझ में आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग है. और ये आपको नॉट जस्ट हियर, ये आपको ना इनडायरेक्टली और डायरेक्ट सेंस में बहुत टॉपिक्स में काम आएगा. आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इससे क्वेश्चन बनाया जाता है एडवांस के लिए, आपको वेव्स में इसका काम आएगा, राइट. वेव ऑप्टिक्स में काम आ जाएगा इसका आपका. तो काफी एसएचएम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कहीं भी वेरेवर द ऑसिलेशन इज देयर, जहां भी क्वेश्चन को मन करे कोलिजन में काम आ सकता है ना. तो जहां भी क्वेश्चन सेटर को मन किया कि मुझे ऑसिलेट करवा देना है, उसका टाइम पीरियड निकलवा देना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेगा ना, एसएचएम को यूज कर लेगा. चलो एक सिंपल सा और मान लो कि एग्जांपल 2 कर लेते हैं. लेट्स सपोज द बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, और ये आपका मेन पोजीशन है. दिस इज योर पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम है. मान लो कि ब्लॉक कहीं इधर है ना, मान लो कि इधर ये कितना लोगे, a/2 ले लो, है ना. चलो a/2 मान लो इस पोजीशन पे ब्लॉक है. लेट्स से द ब्लॉक एट टाइम t is equals to 0 is moving in this direction at time t is equals to 0. आपको इसका इक्वेशन एसएचएम का निकालना है. राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम. चलिए इसको ट्राई करो. आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा. ट्राई कर लो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट. मुश्किल नहीं, जैसा हमने अभी किया इन द प्रीवियस क्वेश्चन, यू शुड डू द सेम वे. कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा नहीं करो अभी, है ना.
लेट्स लर्न दिस टेक्निक। इसको आप फंडामेंटल कोर आपको समझ में आना ही चाहिए, नहीं तो मुश्किल है ना। चलो, आई एम डन विद इरेजिंग दिस। ओके ग्रेट। नाउ एज आई बिलीव यू गाइस हैव गिवन इट अ ट्राई। इसको हम साथ में करते हैं, ठीक है। पहली बात तो है भैया कि इसका जो इक्वेशन होगा एसएचएम का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। हमारा जो टाइम जीरो पे मीन पोजीशन पे नहीं है, तो एक तो फेज होगा इसके पास, इनिशियल फेज तो है। फेज को आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि डिस्टेंस, पाथ, उसको एंगुलर में कर देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ना, फिर एंगल में लिखेंगे उसको हम लोग। वही बात है, वही कहानी है, कुछ अलग चीज नहीं है, काइनेमेटिक्स ही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू व्हाट, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। हमारा काम है कि फाई नॉट निकालो। क्या स्टेप है जी, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, बॉडी कहां पे, a/2 पे है, तो भैया फटाफट कर लेते हैं इसको। a/2 इसको हो जाएगा a, हटाओ जी, है ना, साइन ऑफ फाई नॉट, क्योंकि भैया t तो 0 हो गया। टिक टिक टिक, आपको क्या मिल गया, साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1/2। हा ओके जी, 1/2 पे है, तो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लो जल्दी से। आप ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं तो आपको ऐसे करके दिखा दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो 1/2 है, तो कहीं ना कहीं या फिर यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है, राइट। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ये हमारा आपका एम्पलीट्यूड है, दिस इज योर नेगेटिव एम्पलीट्यूड है बच्चों। देखो कितना मजे में हो जाएगा, टिक 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 टिक, है ना। 1/2 किधर होता है, साइन 30 डिग्री पे होता है जी, है ना। तो दिस इज गोना बी हाउ मच, पाई/3, कोई मुश्किल नहीं इसमें तो बात नहीं है ना। और ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 कितना हो गया, 2π/3। तो दिस इज गोना बी 2π/3, कोई दिक्कत नहीं ना, पाई माइनस पाई/3 2π/3। इट मींस बच्चों या तो ये होगा या फिर तो ये होगा, राइट। आप कॉस के टर्म्स में करके देख लो, या फिर ऐसा समझो कि बॉडी कहां जा रहा है, बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बॉडी फिर से मीन पोजीशन की तरफ ही जा रहा है। आप इसको देखोगे, इफ यू लुक एट दिस वन, क्या हो रहा है, टिक 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 टिक, यू नो, बॉडी इज गोइंग टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, बॉडी एक्सट्रीम पे जा रहा है। नहीं, मेरे को क्या चाहिए, बॉडी मीन पे जाना चाहिए, मतलब कि ये वाला एंगल होगा आपका, है ना। बिकॉज इफ यू लुक एट दिस, ये मीन की तरफ जा रहा है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाई तो मेरे को मिल गया, फाई इज हाउ मच, फाई नॉट शुड बी 2π/3। आप चाहो तो इसको कॉस के टर्म्स में करके देख लो, पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। इस केस में नेगेटिव होना चाहिए, चलो हम उसको भी कर लेते हैं। v इज गोना बी हाउ मच, a ओमेगा ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट, करेक्ट है जी, है ना। ऑल गुड। दैट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है आपका, इस तरफ है, नेगेटिव है, तो एनीवेज cos t इज इक्वल टू 0 बच्चों, a ओमेगा cos ऑफ फाई नॉट व्हिच इज लेसर देन 0, क्योंकि v नेगेटिव है, मीन लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब फॉर दीस टू एंगल, π/3 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/3 इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो हम इसको चूज नहीं करेंगे। cos नेगेटिव कब होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो 2π/3 चूज कर लेंगे। तो बड़ा ही आसान वजह से हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है बच्चों। तो कोई मुश्किल वाली बात इसमें भी अपन को दिख नहीं रही है। एक और कर लो, एक क्या, एक और करना है, एक और करना है, चलो कर लो। तो एक सपोज एक और कर लो, मान लो कि हमारा एक मीन पोजीशन है, दिस इज अ मीन पोजीशन, दिस इज अ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दिस इज योर नेगेटिव एम्पलीट्यूड, है ना। अब मान लेते हैं कि भैया ये जो ब्लॉक है इस पॉइंट पे है, हमारा कितना पॉइंट है, चलो इसको a/2 ही मान लेते हैं ना, एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइटवर्ड, ये हमारा राइटवर्ड है। अब देख लो क्या करेंगे इसमें, सेम कहानी, फिर से वही रिपीटेशन होगा, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूं। देखो कि बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, राइट। द बॉडी इज गोइंग टुवर्ड्स राइटवर्ड, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। इन दोनों केस में देखो, इस एंगल के लिए वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जा रहा होगा। तो बच्चों सिंपल से बात है कि जो फाई नॉट आपका हो गया π/3 हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, ये लो भाई, दम 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 दम, यू नो, ओमेगा टी प्लस π/3। कितना मजे में हम इसको कर पा रहे हैं, राइट। आई बिलीव आपको ये बातें समझ में आ रही है, नहीं तो फिर से देखो, देखो बट सीखो बट, है ना, जरूरी है बच्चों, इसलिए बोल रहा हूं जरूरी है, इसको रिपीट करके देखो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, इतना हम सीख लिए हैं। और थोड़ा और अगर इसके बारे में जानना चाहें तो अब हम इस पे देख सकते हैं कि टाइम कितना लेगा, है ना, हाउ मच टाइम विल इट टेक। कि एक क्वेश्चन आपको समझाता हूं टाइम के बारे में, कि टाइम कितना लेगा वो, है ना। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर समझ लेते हैं ना। चलिए, या फिर हटाओ इसको, रहने दो यार, क्या जा रहा है ना। मान लो इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्लॉक इज हियर, ठीक है, ब्लॉक यहां पे है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट। मैं पूछ दूं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच टू द एक्सट्रीम पोजीशन, टाइम टेकन टू रीच टू द, टाइम टेकन टू रीच द एक्सट्रीम, टेकन टू रीच द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, इस पे पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा आगे फॉरवर्ड करते हैं, पूछ लें कि यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, करेक्ट है ना, पूछा जा सकता है, इट कैन बी आस्क्ड
क्योंकि टाइम तो कहीं से भी लिया जा सकता है। लेट अस सपोज ये हमारा टाइम 0 पे है ना, दिस इज टाइम t इज 0 पे है बच्चों। आपसे पूछा गया कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगा, ठीक है। अच्छी बात, अब मेरी बात समझो। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, इतना तो मेरे को पता है। ऑल गुड। तो लेट्स सपोज कि वी नो दैट फॉर 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट टेक्स टाइम हाउ मच, टी टाइम लेता है। 2 पाई एक कंप्लीट के लिए वो कितना टाइम लेता है? टी लेता है। मान लो कि इफ आई कुड जस्ट फाइंड द फेज डिफरेंस, इन दोनों पोजीशन का फेज डिफरेंस निकाल ले, मतलब कि इन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस निकाल ले। इन द डिस्टेंस वाले लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबॉलिक बात मैं बोल रहा हूं। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल ले तो प्लीज a माइनस a बाई 2 मत कर दियो, वो अलग बात है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फेज निकाल लें, दैट इज अ फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर 2 पाई फेज के लिए t टाइम लेता है बच्चों, for 2 pi phase it takes time t, then for some phase difference, let's suppose delta phi के लिए वो कितना टाइम लेगा? that should be delta phi into t upon 2 pi, है ना। तो भैया this is the time taken, एक फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। this is the time taken to cover a phase of delta phi। इस फेज को कवर करने के लिए जो टाइम लेता है दैट वुड बी गिवन एज डेल्टा फाई इनटू टी अपॉन 2 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना आना चाहिए और वही मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। अच्छी बात है। यहां देखो, इस पॉइंट के लिए फेज हमने कितना निकाला था? पाई बाई क्या था भैया? पाई बाई 3 है ना, ये हमारा पाई बाई 3। द फेज इज हाउ मच? इनिशियल फेज हमारा इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, सॉल्व किया था हमने। फाई नॉट इज हाउ मच? पाई अपॉन 3। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, 0 ये कितना फेज हो गया? पाई बाई 2। 0 1 क्वाड्रेंट 90 डिग्री है ना, 0 पाई बाई 2। नाउ लेट्स से इसका इस पॉइंट का फेज कितना होता है? पाई बाई 2। इसको हम समझेंगे और भी डिटेल में भी मैं समझाऊंगा आपको। तो फ्रॉम पाई बाई 3 ये पाई बाई 2 चला गया, तो कितना फेज ट्रेवल किया? व्हाट इज द फेज डिफरेंस? तो फाइनल फेज है बच्चों पाई बाई 2, इनिशियल है पाई बाई 3, तो जो फेज डिफरेंस हो जाएगा दैट्स गोना बी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, well that's going to be 6 and 3 minus 2 1 पाई बाई 6। so the phase difference हो गया obviously 60 से 90 30 डिग्री, पाई बाई 6। इस फेज डिफरेंस को कवर करने में वो टाइम कितना लेगा? तो दैट शुड बी ऑब्टेन्ड विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूले। डेल्टा फाई बच्चों इज पाई बाई 6 है ना, इट इज पाई बाई 6 और t अपॉन 2 पाई कर दो भैया, t अपॉन 2 पाई। इट मींस द टाइम टेकन शुड बी हाउ मच? t अपॉन 12। so 1/12 of the total time period वो लेगा to reach at this point। it will take 1/12 of the total time period to reach from this point to this point। ऑल गुड बच्चों, क्लियर है? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा और ये मुश्किल नहीं है समझने में। अगर मुश्किल हो रही तो दोबारा देखो, बट देखो जरूर, आई एम रिपीटिंग अगेन है। आप इसको देखो, समझो बहुत अच्छे से, धीरे धीरे आप इसको सीखते रहो, है ना। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग टाइप का है आपके लिए, बट आई एम श्योर आप इसको सीख पाओगे अच्छे से, और मैं भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छी बात है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं बच्चे। लेट मी जस्ट शो यू वन मोर थिंग, है ना। अगर इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दे, इसको थोड़ा सा और वर्सेटाइल बना दे हम, और मैं बोलूं आपको कि एक जो ब्लॉक है, एक अच्छा एग्जांपल देख लो। एक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, है ना, और वो भाई साहब इस पोजीशन पे है, फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम, है ना, इस पोजीशन पे है वो, ठीक है। दिस इज द मेन पोजीशन और इसका वैल्यू है √3/2a, इट इज अ डिस्पोजिशन, ठीक है जी। या फिर इसको ऐसे ले लो कि इस पोजीशन पर टाइम t इज टू 0, द बॉडी इज हियर, हमारा ब्लॉक यहां पे है, ठीक है। नाउ इन सर्टेन टाइम t इट हैज रीच्ड टू दिस पोजीशन और इसका वैल्यू जो है √3/2a दे रखा हमने, ठीक है। एक कुछ टाइम लेता है और इट कम्स ओवर हियर, यहां पहुंच जाता है। लेट्स सपोज दिस बॉडी इज मूविंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 रेडियन, 4 पाई रेडियन, है ना, ये हमारा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड से जो हमारा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आपको बताना है कि व्हाट आर द टाइम्स
at in which the body would be here, या फिर इस तरफ भी हो सकता है, सेम डिस्टेंस पे वो इस तरफ भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. So the question could be summarized as, if the body is starting from the extreme, right extreme, okay, and it's going to go towards the mean position, so it is moving with oscillating with an angular frequency of 4 pi radian per second. आपको बताना है, you have to tell me what are the times when the body would be at a distance of root 3 upon 2a from the mean position. Body इस distance पे कब होगा, when at what all the times the body is going to be at a distance of root 3 upon 2a from the mean position. तो बच्चों या तो वो distance right में भी हो सकता है और towards left भी वो distance हो सकता है ना. It could be rightward or it could be leftward also हो सकता है. तो बॉडी का पोजीशन यहां पे हो या यहां पे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको दोनों उस टाइम को बताना है. ऑलराइट बच्चों, बहुत अच्छा. अब आप इसको एक वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, कोशिश करो इसको करने का, फिर हम साथ में आगे बढ़ते हैं. आप इसको ट्राई करो, नाउ गिव इट अ ट्राई. आप इसको ट्राई करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों टाइम्स के बारे में, इन दोनों पोजीशंस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यही वो पोजीशंस है जहां पे बॉडीज को हम चाहते हैं. ठीक है, अच्छी बात है. तो पहला काम क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू व्हाट, a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, है ना. सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, तो फाई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ, पाई बाई 2. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, सो पाई नॉट का वैल्यू हो जाएगा आपका पाई बाई 2. फाई नॉट का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा. सो फाई नॉट इज हाउ मच, पाई बाई 2. ओके, ठीक है. ये जो भाई साहब x है, इस पॉइंट पे x जो है इतना डिस्टेंस किया, ठीक है. बट प्लीज डू नॉट टेक दिस एज डिस्टेंस फ्रॉम हियर, इट शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द मेन पोजीशन, राइट. तो मेरे को पता चल जाए कि किस टाइम पे, या फिर पहले एक स्टेप और लिख लो, क्योंकि फेज नॉट इसका जो पाई बाई 2 है, तो x को क्या लिख सकते हो, a sin of omega t plus pi by 2 बच्चों, है ना. And we know that sin of pi by 2 plus theta is cos theta. So this is going to be a cos of omega t. अच्छी बात है सर, ये हमारा हो गया x is equals to a cos omega t. What gonna be the time when the body is at this position? तो मान लो कि x का वैल्यू कितना है, root 3 upon 2 a is equals to a cos of omega t. सर सिर्फ पॉजिटिव होगा क्या, कि नेगेटिव ही ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो आपका प्लस माइनस. तो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन, द टाइम व्हेन द इसका जो पोजीशन है वो प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2a के वैल्यू के इक्वल में हो. अब a से तो एक चला जाएगा ना, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन बन के आ रहा है बच्चों, वो क्या है, cos ऑफ ओमेगा t इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 प्लस माइनस. अच्छी बात है. तो आप इसको पता, आपको ट्रिगो पता है इसके बारे में, तो ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी को लिख सकते हैं n पाई, n टाइम्स ऑफ पाई प्लस और माइनस ऑफ रूट 3 बाई 2. कितना पहुंचा है जी, रूट 3 बाई 2 कितने पहुंच जाएगा, 60 डिग्री पे, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 है ना, सही है ना. तो प्लस माइनस पाई बाई 3, क्यों, ओह सॉरी 30 पे होता है ना, सॉरी माय बैड, 30 पे होता है, इट्स अ कॉस ना, तो पाई बाई 6. ओमेगा का वैल्यू दे हैव गिवन व्हिच इज हाउ मच, 4 पाई. तो टाइम शुड बी गिवन एज व्हाट, n पाई अपॉन ओमेगा व्हिच इज 4 पाई प्लस और माइनस ऑफ पाई अपॉन 6 टाइम्स 4 पाई 24 पाई. तो कटम पिड़ाई करने के बाद जो टाइम आएगा बच्चों, दैट इज गोना बी हाउ मच, टिक टिक टिक, n अपॉन 4 प्लस और माइनस ऑफ 1 अपॉन 24. ये हमारा वो टाइम्स है जब बॉडी का जो पोजीशन होगा दैट वुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 3 अपॉन 2a. क्लियर है, फ्रॉम द मेन पोजीशन. इतनी बात समझ में आ रही है, अच्छी बात. अब देखो, तो वी हैव टू फाइंड दोस टाइम, टाइम के वैल्यू निकाल लेंगे. तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, नो, इट विल कीप ऑन डूइंग फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. करेक्ट है ना जी. तो उस तरह का टाइम मेरे को बहुत सारे टाइम मिल जाएंगे, तो हम लोग 2 3 4 टाइम्स पहले निकाल लेते हैं, है ना. तो देखो, एट n is equals to 0, at n is equals to 0, अरे भैया है ना, जो t कितना हो जाएगा, t should be 0 minus 1 upon 24 या फिर 0 plus 1 upon 24. तो क्या हो गया, 1 upon 24 हो जाएगा, और ये माइनस हो गया, तो माइनस टाइम को विल नॉट काउंट, माइनस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे. तो 1 upon 24 सेकेंड हो गया. पहली बात तो है ना. हो सकता है कि n could be 1, at n is equals to 1 क्या हो जाएगा,
टाइम शुड बी 1/4 प्लस और माइनस ऑफ 1/24। तो अगर हम देखें प्लस माइनस दोनों करके सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, दैट्स गोना बी 1/4 प्लस 1/24 होगा, या फिर 1/4 माइनस 1/24। तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, कितना हो जाएगा, 6 + 1 7/24। ये हमारा हो गया 7/24 सेकेंड्स, और ये कितना हो जाएगा 5/24 सेकेंड्स। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे टाइम्स मिल जाएंगे। तो हम जस्ट गोना समराइज इट ओवर हियर। तो हमारा कितना टाइम हो गया, 1/24 सेकेंड पहला टाइम हो जाएगा जब वो बॉडी इस पोजीशन पे होगा। सेकेंड टाइम जो हो जाएगा 5/24 सेकेंड्स, और थर्ड टाइम जो हो जाएगा बच्चों 7/24 सेकेंड। ऐसे ही करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे। तो एट ऑल दीज टाइम्स द बॉडी इज गोना बी एट द पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ √3/2a फ्रॉम द मेन पोजीशन।